السلام علیکم، سس نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقیب اور میں ہوں ہما دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے دعا کے ساتھ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اے رب ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عاصم سلیم باجوہ کی درخواست منظور کر لی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑنے کی درخواست کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ 1 ماہ قبل عاصم سلیم باجوہ نے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا، جسے وزیر اعظم کی جانب سے مسترد کر دیا گیا تھا اور وزیر اعظم نے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ سپریم کورٹ نے وکلا کی تقریب میں شرکت کرنے پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں۔ وزیر اعظم نے نجی حیثیت میں کنونشن سینٹر کا استعمال کیا۔ وزیر اعظم ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے دیوانی مقدمے میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل کنونشن سینٹر میں ہونے والے سیاسی اجتماع میں بیٹھے رہے۔ ایڈوکیٹ جنرل بننے کے بعد وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل کسی سیاسی جماعت کا نہیں، پورے صوبے کا ہوتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری سپریم کورٹ بار رفاقت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے تقریب میں شرکت کر کے وکلا گروپ کو سپورٹ کیا۔ سپریم کورٹ نے کنونشن سینٹر میں وکلا کی تقریب میں شرکت کرنے پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ آئین کی تشریح اور بنیادی حقوق کا ہے۔ بظاہر کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم نے ذاتی حیثیت میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے وکلا کی تقریب میں شرکت کر کے کسی ایک گروپ کی حمایت کی۔ انچارج کنونشن سینٹر بتائیں کہ کیا اس تقریب کے اخراجات ادا کیے گئے؟ وزیر اعظم نے نجی حیثیت میں کنونشن سینٹر کا استعمال کیا۔ وزیر اعظم ملک کے ہر فرد کا وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ تقریب کسی پرائیویٹ ہوٹل میں ہوتی تو اور بات تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے استفسار کیا کہ وزیر اعظم کا اقدام غلط تھا یا درست۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ ایک وجہ سے جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوں۔ میری تقرری نہ سیاسی ہے، نہ ہی کسی تقریب میں شریک ہوا۔ عدالت نے سینئر ترین ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو آئندہ سماعت پر معاونت کی ہدایت کر دی اور معاملے پر بینچ تشکیل دینے کے لیے عدالتی حکم نامہ چیف جسٹس کو ارسال کر دیا۔ سہرش خان، سیش نیوز، اسلام آباد۔ سندھ حکومت نے وفاقی وزیر شیخ رشید کو مولانا عادل قتل کیس میں شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعید غنی کہتے ہیں شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جلسوں میں کورونا اور دہشت گردی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا ہے اگر شیخ رشید کو دہشت گردی کا علم ہے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے، لہٰذا اس سے متعلق شیخ رشید کو شامل تفتیش کیا جائے۔ شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ اپوزیشن جو جلسے کر رہی ہے ان جلسوں میں کرونا بھی پھیلے گا اور دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ کراچی شہر میں ہوا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شیخ رشید کو شامل تفتیش کیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ اس کے پاس وہ کون سے ذرائع ہیں، اس کو کس نے بتایا ہے کہ دہشت گردی اپوزیشن کے جلسوں میں ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے علم میں یہ چیزیں ہیں تو اس کو بتانا چاہیے۔ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو غیر ملکی طاقتیں ہیں، اگر وہ یہ کرانا چاہتی ہیں تو شیخ رشید کو پتہ ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے تو فوری طور پر اقدامات حکومت نے کیا کیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آدھے سیاستدانوں پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا۔ عمران خان کے خلاف میں بھی مقدمہ درج کرانا چاہتا ہوں، نیب چلائیں یا پاکستان کو چلا لیں۔ ایک ایس ایچ او ہے جو 2:30 بجے رات کی اتنا فرض شناس ہے کہ رات کے 2:30 بجے پرچے درج کراتا ہے، تو میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک آدمی ہے عمران خان نامی، وہ 62-63 کا مرتکب ہے، جو اس نے حلف اٹھایا ہے آئین کے تحت اس کی وائلیشن کا مرتکب ہے۔ جو آدمی سرکاری افسروں کو بلا کر یہ کہے کہ اپوزیشن پر پرچے بناؤ، نام لے لے کر بتائے اس آدمی پر، اس آدمی پر، اس آدمی پر، اور جو پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کے خلاف قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کے خلاف یہ کہے کہ اس پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤ، اگر ہم پہ
पर्चे दर्ज हो सकते हैं गद्दारी के, तो फिर उस पर भी पर्चा दर्ज हो सकता है 62-63 का, आईन से इनहराफ का, सरकारी मामलात में दखल अंदाजी का, ये सब कवानीन मौजूद हैं। तो अगर इंसाफ का निज़ाम यकतरफा ही है तो फिर चलने दें, वरना ये सब पर्चे दर्ज करें और चलाएं उनको। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में। वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं, वफाकी वजीर अली जैदी BTS से गुफ्तगू कर रहे हैं। अटैक कर देते हैं, बैठे खुद हैं ऊपर जखीरा अंदोजी करके। इसी तरह इन्होंने चीनी में भी किया है। पंजाब से चीनी, ये शुगर माफिया जो है सिंध के गोदामों में छुपाई जा रही है, तो इसलिए चीनी भी महंगी हो गई। यहां क्योंकि यहां इनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत इनकी है, लॉ इन्फोर्समेंट इनके पास है। पंजाब से शुगर मैं तो स्मगल ही कहूंगा करके लाके इधर जमा कर रहे हैं अपने गोदामों में, ताकि वहां भी पूरे पाकिस्तान में चीनी भी महंगी हो जाए। अवाम की जो हुकूमत बन के लेके आते हैं, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, रोटी भी तो छीन ली, रोटी दे नहीं सक रहे, इतनी महंगी कर दी, और खुद बैठे हुए जखीरा अंदोजी करके, और इल्जाम लगाते हो पूरे पाकिस्तान के हर एक के ऊपर, और खुद बैठे हुए हो। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये नाअहली है कि साजिश है। ये आप खुद फैसला कर लें, क्योंकि ये हर साल होता है। जब से ये तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, ये हर साल यही हरकत करते हैं। तो ये इतने नाअहल नहीं है, क्योंकि अपनी बारी में जब इनका मकसद होता है, जब इनको डॉलर नजर आते हैं, जब इन्होंने माल बनाना होता है, सारे काम ये खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं, लेकिन अवाम को चूज के फेंक देते हैं अवाम को। मैं चाहूंगा कि महमूद मौलवी साहब भी जरा इसके ऊपर जल्दी से ब्रीफ कर दें कि क्या है इस वक्त। देखें, इस वक्त जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहूँगा इस वक्त वही बहरान जो आटे का जो चल रहा है, उसकी जो मुझे वजह नजर आ रही है, वो जो ये PDM है। नायब दफ्तर लाहौर में हंगामे आराई की केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, मोहम्मद सफदर और दीगर की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। राना सनाउल्लाह अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए, जबकि कैप्टन सफदर की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालत को बताया गया कि कैप्टन सफदर पेशावर में हैं, लिहाजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर की जाए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं ने कारकुनों को हमले और तशद्दुद पर उकसाया। राना सनाउल्लाह के वकील का कहना था कि दहशतगर्दी का मुकदमा बेबुनियाद, हंगामा आराई और तशद्दुद का इल्जाम झूठा है, लिहाजा अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। अदालत ने नून लीगी रहनुमाओं की 15 अक्टूबर तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाअहल टोले को हर सूरत जाना होगा। इस्तीफों का फैसला क़यादत करेगी। जब इस्तीफों का वक्त आया तो किसी का बाप भी इलेक्शन नहीं रुकवा सकता। 16 अक्टूबर का जलसा रेफरेंडम होगा। ये पुरअमन इज्तिमा है जिसे रोकने की कोशिश की गई तो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होगा। लोग चाहते हैं उन्हें निकाला जाए और आजादाना इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। इस वक्त कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कीमती शख्स हमसे छीना है कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, जिन्होंने 5 साल अमेरिका में, कैलिफोर्निया में ये काम किया, जिन्होंने 10 साल मलेशिया में, कोलालमपुर में रहे, ये काम किया। उनकी सारी दुनिया में एक इज्जत, एक साख थी जो अब हम में नहीं रहे, उन्होंने हमसे छीना गया है। तो इंशाअल्लाह इसका बदला भी लेंगे और इबरतनाक सजा भी उन लोगों को मिलेगी, ताकि आगे जिंदगी में ऐसी कोई हरकत का सोच ना सके पाकिस्तान। गवर्नर साहब, 90s के एंड में जो कराची में शिया सुन्नी की तदाद की साजिश हुई थी, उसमें भी सबसे पहले इसी जामिया के मोहतमिम को निशाना बनाया गया था, उसके बाद शिया सुन्नी तदाद हुई है। लेकिन आज तक मुफ्ती शामज़ई हों या जितने भी जामिया बनूरी से वाबस्ता लोग हों, आज तक किसी का कोई कातिल नहीं गिरफ्तार हो सका। ये भी तारीख दोहराई जाएगी। देखिए, मैं पिछली तारीख पे तो नहीं कोई कमेंट कर सकता कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मैं आपको ये ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस बार इनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ये इरादा किया है इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने, और भरपूर तरीके से इसके ऊपर काम चल रहा है। हुकूमत के मुखालफिन इस पूरे वीक में कराची में जलसे, जुलूस, रैलियाँ सब कुछ करेंगे, तो ये अमन अमान की सूरत हाल किस तरह बरकरार रह पाएगी? क्या लेकिन जो मर्जी करें, ये मौका नहीं है इस तरह अभी सियासत पर बात करने का। फिलहाल मैं ताज़ियत के लिए आया था तो इसी पे रखें, लेकिन जिसकी जो मर्जी वो करे, आज़ाद मुल्क है।
لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. اگر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, امن و امان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا. بہت شکریہ. وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ علماء نے ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کی. امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علماء کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعظم سے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سمیت علماء وفد کی ملاقات. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سماجی مذہبی اقدار اجاگر کرنا ضروری ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اون شرازی سے. جی اون شرازی, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ملاقات کے حوالے سے؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے علماء نے ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کی ہے. امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علماء کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعظم سے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سمیت علماء وفد کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سماجی مذہبی اقدار اجاگر کرنا ضروری ہے. سماجی مذہبی اقدار اجاگر کرنے میں علماء کا کردار کلیدی ہے. ملک میں مہنگائی مافیا نے پھر سر اٹھا لیا. شہریوں کی کھال اتارنے کے لیے مافیاز کا گھر جوڑ. آٹا, چینی, دالیں اور سبزیاں سب مہنگے ہو گئے. عام آدمی کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل بنا دیا گیا. حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. وطن عزیز میں غربت, مہنگائی, بیماری اور بے روزگاری نے غریب عوام کو زندہ درکور کر کے رکھ دیا ہے. بہتری کے آثار تاہم دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں. پہلے چینی مافیا بے لگام ہوا اور قیمتیں دگنی ہو گئی. پھر آٹا مافیا نے سر اٹھایا تو قیمتیں اب تقریباً دگنی ہونے کے قریب ہیں. ادھر تنور مافیا نے بھی آستینیں اوپر چڑھا لی ہیں. دالیں اور گھی پہلے ہی عوام کی پہنچ سے باہر ہیں. شہری جائیں تو جائیں کہاں. رہی صحیح کسر ادویات مافیا نے نکال دی ہے. زندگی بچانے والے ادویات میں بھی 263% اضافہ ہو چکا ہے. حیران کن امر یہ ہے کہ ادویات مافیا نے اس کی اجازت خود حکومت سے لی ہے. کیا مافیا اس قدر طاقتور ہے کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ کیوں وزیر اعظم عوام کو اس قاتل مافیا سے رہائی دلانے میں بے بس دکھائی دیتی ہے؟ اب یہ راز ایک لاولے کا روپ دھار چکا ہے. عوام تنگ آ چکے ہیں اس روز بروز بڑھتی مہنگائی سے. راولپنڈی میں ملز مافیا نے چینی کی بوری میں 300 روپے اضافہ کر دیا. ہول سیل میں 98 روپے جبکہ پرچون پر 107 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی. مزید بتا رہے ہیں سہیل راجہ. جی سہیل, بتائیے گا. جی بالکل, میں اس ٹائم راجہ بازار میں موجود ہوں. چینی کی اگر ہم بات کریں, وزیر اعظم کے کل اعلان کے بعد مہنگائی میں جو ہے وہ نوٹس لیا گیا. اس کے بعد چینی کی قیمت میں جو ہے اچانک اضافہ کر دیا گیا. راولپنڈی میں جو ہے چینی کے ہول سیل ڈیلر ہے, وہاں پہ چینی جو ہے 98 روپے تک جو ہے پہنچ چکی ہے. جبکہ یہی چینی جو ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے اگر ہم بات کریں تو 95 سے 96 روپے کلو میں فروخت ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ تاجر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, آپ بتائیے گا چینی کی قیمت میں اچانک جو اضافہ ہو رہا ہے, دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آٹے کے بعد چینی بھی جو ہے وہ قلت اختیار ہوتا قلت محسوس ہو رہی ہے اور قیمتیں بڑھتی جا رہی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چینی آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے جو ریٹ تھا تقریباً 90 اور 92 روپے پر کے جی کے قریب تھا. کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اندر. کوئی حکومت کا کہیں کسی طرف سے نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی ادارہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھا ہو. روز بروز 50 یا 100 روپے تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے. بالکل, آپ نے سنا ان کا بھی یہی کہنا ہے. آٹے کے بعد جو ہے چینی نے بھی مہنگائی کی طرف اپنا سفر جاری کر دیا ہے. چینی میں جو ہے وہ مسلسل اضافے کا امکان ہے, جبکہ ملز مالکان جو ہے مافیا کے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں, جس کے بعد جو ہے حکومت بھی جو ہے چینی مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہی, جس کے بعد چینی کی قیمت میں جو ہے دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. اور ہول سیل مارکیٹ میں چینی 98 روپے, جبکہ پرچون میں جو ہے چینی جو ہے تقریباً 107 سے 112 روپے جو ہے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ سہیل راجہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث حکومت نے ایران سے درآمد کا فیصلہ کر لیا. وفاقی حکومت نے درآمد کنندگان کو ایران سے ٹماٹر اور پیاز درآمد کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی. وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے مطابق ایران سے ٹماٹر اور پیاز درآمد کرنے کی 1 ماہ کے لیے اجازت دی گئی, جس کا مقصد ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں کمی لانا ہے. ٹماٹر کی درآمد کے پرمٹ جاری کیے گئے ہیں تاکہ درآمد کنندگان 1 ماہ کے لیے جتنا چاہیں پیاز اور ٹماٹر درآمد کر سکیں. اگر ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو اس صورت میں درآمدی اجازت میں توسیع کی جا سکتی ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची को बदतरीन माहौलियाती आलूदगी का मरकज बनाने का खतरनाक मंसूबा नाकाम बना दिया गया। इंतहाई खतरनाक और जहरीली गैस फैलाने वाला मवाद कराची में डंप किया जाने लगा। जहरीला मवाद पूरे मुल्क से लाकर कराची के मजाफात में जमा किया जा रहा है। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने मलीर पोर्ट कासिम के इलाके में कार्रवाई करते हुए खतरनाक ज़रूरी अद्वियात और ज़ायदुल मियाद अद्वियात से भरे कई ट्रक पकड़ लिए हैं। मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, ये सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से मलीर के इलाके में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जो है जहरीले मवाद जो है मवाद उसकी भरे ट्रक जो है पकड़ लिए गए हैं और डायरेक्टर सिपा का कहना है कि ये जहरीली जो है ज़ायदुल मियाद ज़रूरी अद्वियात का फुजला है जो कि समंदर में फेंका जाना था, लेकिन फौरी तौर पर कार्रवाई करके एक बड़े हादसे से और बड़ी खतरनाक चीज से बचा लिया गया है कराची को। और डायरेक्टर सिपा का कहना है कि तारीख की अहम तरीन कार्रवाई है जिसमें इंसानी जानों और हैवानात समेत दीगर लोगों को खतरनाक जो पेस्टिसाइड से खतरनाक नुकसान हो सकते थे, लेकिन ये कार्रवाई करके जो है इससे बचा लिया गया कराची शहर को। और इससे पहले भी कुछ कार्रवाई होती, लेकिन वो छोटी कार्रवाई थी। ये आज की जो है सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें जो है पेस्टिसाइड जो ज़रूरी अद्वियात होती हैं उसके भरे ट्रक जो है फजले के वो पकड़ लिए गए हैं और उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको भी तहवील में लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। कराची में सूरज से आग बरस रही है। हीट वेव के खतरे के पेश नजर अस्पताल के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। माहिरीन ने शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज। जी बिल्कुल, कायद के अंदर जो है एक बार फिर जो है सूरज ने ली अंगड़ाई और यहाँ पर महकमा मौसमियात का भी कहना यही है कि हीट व्यू का जो है 42 सेंटीग्रेड डिग्री जाने का जो इम्कान है। जैसे कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशरूबात के सिलसिले में जो है यहाँ पे जगह जगह है। और इसके अलावा डायरेक्टर मौसमियात ने यह भी कहा है कि हीट व्यू की लपेट में रहेगा और दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी और मैदानी इलाकों में जो है गर्म व खुश हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही दर्जे हरारत 39 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि 14 से 16 अक्टूबर के दौरान जो 12 से 42 डिग्री गेट को छोड़ सकता है। इसके अलावा जो महकमा मौसमियात ने शहरियों को जो है दिन के औकात में बिना जरूरत एहतियात का भी कहा है कि अपने घरों में रहें, महफूज रहें और ज्यादा जरूरत वक्त से बाहर न निकला जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा बल्दिया केस में 5 मुजरिमों की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने 4 माह के अंदर तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस फाइल समेत अदालती कार्रवाई और दीगर दस्तावेजात भी तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 सितंबर को सानिया बल्दिया केस का फैसला सुनाया था। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शराब लाइसेंस इजरा केस में साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के जुडिशियल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने नायब प्रोसिक्यूटर से रेफरेंस से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम अकरम अशरफ गोंदल की जानिब से दायर दरख्वास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए शराब लाइसेंस जारी किया। नैब की जानिब से करप्शन और इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम गलत है। तमाम रिकॉर्ड नैब को फराहम कर चुका हूं, जेल में रखने का कोई जवाज नहीं है। अदालत दरख्वास्त जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। अदालत ने अशरफ गोंदल के जुडिशियल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। नैब शराब लाइसेंस केस में वज़ीर आला पंजाब को भी तलब कर चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब इनाम गनी की तैनाती से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। आईजी पंजाब की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आईजी पंजाब की तैनाती में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और पुलिस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई। इस्तदा है कि आईजी पंजाब की तैनाती कलअदम करार दी जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है।
पाबंदी के बाद प्रॉक्सी के जरिए टिकटॉक का इस्तेमाल बढ़ने लगा। VPN के जरिए भी टिकटॉक की बंदिश के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTA ने कानूनी ज़ाब्ते पूरे करते हुए टिकटॉक की बंदिश का हुक्म दिया। बहुत से सार्फिन VPN प्रॉक्सी के जरिए टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तदा है कि VPN के जरिए भी टिकटॉक बंद करने का हुक्म दिया जाए। टिकटॉक के सारिफिन इसी जैसी ऐप लाइक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी ऐप्स के इस्तेमाल से बेहयाई और वक्त का ज़िया बढ़ रहा है। इस्तदा है कि अदालत इस पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे। गुर्बत के खात्मे और खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब मट्टी में मिल गए। घर के हालात सुधारने के लिए गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले मंडी बहाउद्दीन के 5 नौजवान जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान। मंडी बहाउद्दीन में इंसानी स्मगलिंग का घनौना धंधा न रुक सका। बेहतर मुस्तकबिल को ख्वाब दिखाने वालों ने मजीद 5 घर उजाड़ दिए। गुर्बत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, हत्ता कि लोग जान की बाजी लगाने पर भी तैयार हो जाते हैं। रईसी कसर इंसानी स्मगलर्स पूरी कर देते हैं। सुनहरे मुस्तकबिल के ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं। नौजवान सब कुछ छोड़ छाड़ कर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने पर तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवानों के साथ, जो घर के हालात सुधारने के लिए गैर कानूनी तरीके से यूनान और इटली जाते हुए फायरिंग और दम घुटने के बाद जान की बाजी हार गए। वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बनने वालों की लाशें घर पहुंची तो सफे मातम बिछ गया। बुढ़ापे का आखिरी सहारा छिन जाने पर लवाहिकीन गम से निढाल हैं। अपनी मर्जी से जाना चाह रहा था और यह उसका ये ख्वाब था कि मैंने वालिदैन को हज कराना है, बहनों को बढ़ाना है और कोर्स कराने हैं और घर की बेहतरी के लिए तुर्की जाके फिर मेन मजदूरी करके फिर आगे जाने का उसका प्रोग्राम था। अली दादा मेरा पुत्र 10वीं च पढ़दा सी। इन्हां सर उहदे नाल गल कीती है, गल करके 1.5 लाख विच गल हो गई। इन्हां सर खड़िया नाल खड़ के आखिरी इन्हां साडे नाल गल हो, मेरा बच्चा जिहड़ा मेरा करके गया ते इह मजदूरी वास्ते निकलिया। मुतासिरीन ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आदिल मेरा भतीजा है ते यासर भी साडा करीबी रिश्तेदार है। तकरीबन 8 लाख विच फी कास्ट दे सान एजेंट नाल गल होई सी। उस आख्या मैं इटली पढ़ावांगा। मंडी बहाउद्दीन मुल्क का वह जिला है जहां इंसानी स्मगलिंग का गैर कानूनी कारोबार पुलिस और जिम्मेदारों की सरपरस्ती में जारी है। सैकड़ों खानदानों के लख्त जिगर यूरोप जाने के ख्वाब लेकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पेशावर में जिले इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन करते हुए 1000 से ज्यादा दुकानें सील कर दी। 3 शादी हॉल्स और मुतादिद मॉल्स को भी ताले लग गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अवैस महमूद। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में कोरोना वायरस के पेश नज़र एक बार फिर जो है वो लॉकडाउन किया जा रहा है, जबकि बड़े बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मॉल्स जो है SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है उनको जो है वो सील कर दिया गया है। इसी तरह जो शादी हाल है, 4 शादी हाल को SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से सील कर दिया गया है। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शादी हाल के बाहर जो है वो इसको सील किया गया है, जबकि इसी तरह जिला इंतजामिया का ये भी कहना है कि भीड़ वाली जगहों पे जो है वो न जाया जाए। आवाम जो है वो खास तौर पर ख्याल रखे, जबकि दुकानदार हो गए, दूसरे जो दुकानें हैं उनका भी जो है वो खास तौर पर ख्याल रखा जाए। SOPs पर जो है वो अमल दरामद किया जाए, जबकि मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी जो एहतियाती तदाबीर है वो भी अपनाई जाए। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से बार बार जो है वो हिदायत जारी की गई है कि SOPs पर अमल दरामद करना यकीनी जो है वो अपनाया जाए। जो आवाम है वो भी जो है वो मास्क का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो जिंदगी है उससे बचा जा सके। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से दुकानें भी जो है दोबारा सील कर दी जा रही हैं, जबकि शादी हाल्स हो गए, स्कूल्स हो गए और दूसरी जो जगह है जहाँ पे भीड़ वाली जगह है उसको भी जो है वो बंद किया जा रहा है। जबकि उनकी जानिब से जिला इंतजामिया की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि एहतियाती तदाबीर की जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। दुकानदार बाकायदा तौर पर जो है अपनी दुकान के बाहर जो है बैनर्स आवेजा करे ताकि जो कोरोना वबा है इससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने श्रीनगर के इलाके रामबाग में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक मजलूम कश्मीरी को शहीद कर दिया। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी है। भारतीय काबिज अफवाज ने जन्नत नजीर वादी में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। श्रीनगर के इलाके रामबाग में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में दहशतगर्द भारतीय फौज ने एक निहत्ते कश्मीरी को शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा करते हुए घर घर तलाशी ली। इलाके के एहतजाज के डर से काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी में इजाफी फौज तैनात कर दी। 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम के बाद मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। कश्मीरियों को बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। सर्च ऑपरेशन की आड़ में आजादी की तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है। नौजवानों को चुन चुन कर शहीद किया जा रहा है। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि चीन आर्टिकल 370 को बहाल करके कश्मीरियों को खुसूसी हैसियत दिलाएगा। उधर मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा ढा कर भारतीय फौज खुद नफसियाती मरीज बनने लगी। जिला कुपवाड़ा के इलाके वालागाम में भारतीय फौज खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा करने लगे हैं। मकबूजा वादी में 13 सालों के दौरान 477 भारतीय फोर्सेस के एहलकार खुदकुशी कर चुके हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के 5 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी वफ्द सिक्योरिटी इंतजाम से मुतासिर है और इत्मीनान का इजहार किया है। सिक्योरिटी वफ्द को एयरपोर्ट और स्टेडियम रूट्स, होटल्स, पार्किंग, पुलिस फोर्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुतल्लिक भी बताया गया। श्रीलंकन और बांग्लादेशी टीम्स के सिक्योरिटी इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई है। चीन के सूबा हुबाई में चीनी बेकर ने कमाल ही कर दिया। ऐसे ऐसे खूबसूरत केक तैयार किए कि देख कर भी मुंह में पानी आ जाए। खुश रंग और लजीज केक खाने को नहीं, बस देखते रहने को दिल करता है। कवाली को जिद्दतों से रोशनास कराने वाले मकबूल अहमद साबरी के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। हाजी मकबूल अहमद साबरी ने इब्तिदाई तालीम वालिद इनायत हुसैन साबरी से हासिल की, फिर अपने बड़े भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ साबरी ब्रदर्स के नाम से शोहरत। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।